मछुआ बाजार दुर्गा उत्सव सार्वजनिक कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा का थीम बच्चों पर आधारित है। आपको बता दें कि शायद ये पहली ऐसी दुर्गा पूजा कमेटी है जो हर साल छोटे बच्चों पर फोकस करके थीम को सेलेक्ट करती है। इससे पहले वेलकम टू ढोलकपुर, अवतार, टेडी बियर जैसी थीम्स के बाद इस साल यहाँ पर पक्षियों की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। एक परिंदे को कैद करके किस तरह से उसके साथ क्रूरता की जाती है, इसे यहाँ पर दिखाया गया है और ये संदेश दिया गया है कि परिंदों को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए जो हम इंसानों को मिली है। वहीं आपको बता दें कि मछुआ बाजार के इस 73वें दुर्गा पूजा का शुभारंभ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हाथों हुआ। इस अवसर पर मौजूद थे पूर्व एमएलए संजय बख्शी, स्मिता बख्शी, साथ ही इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष तपन रॉय, सेक्रेटरी राजेश सिंह, खुर्शीद आलम पांडे, शंकर श्रीवास्तव, मनोज माली, संजय गुप्ता, कमल सिंह और मनोज सिंह वगैरह। इसी मौके पर शामिल हुए वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन, साथ ही अन्य वार्ड्स के काउंसलर्स जिनमें महेश शर्मा, मीना देवी पुरोहित, राजेश सिंह और वार्ड नंबर 42 के टीएमसी अध्यक्ष अशोक ओझा का नाम शामिल है। इनके अलावा उत्तर कोलकाता टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट शांति रंजन कुंडू और वार्ड नंबर 41 टीएमसी युवा अध्यक्ष सूरज यादव भी मौजूद थे। इस अवसर पर इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष तपन रॉय और सेक्रेटरी राजेश सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि मछुआ बाजार की ये दुर्गा पूजा एक मिनी भारत को दर्शाती है जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। इस पूजा कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम हैं। इससे बड़ी सेकुलरिज्म की बात और क्या हो सकती है। এখানে এসে যেটা মনে পড়ছে যে আজ থেকে যদি ওই 35-40 বছর আগে হতো আমি এখানে বসে থাকতাম কিছুক্ষণ, মানে সেই সময়টা আমার মনে হচ্ছে, মানে আমার সাথে আমার ছেলে আসলে বেশি আনন্দ পেত। মানে বাচ্চাদের জন্য ব্যাপারটা দেখো, পাখিরা বাস্তব, পাখিরা যখন আমরা গ্রাম বাংলায় যাই শহরে এই আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না, মানে এই শহরে এই আওয়াজ নেই, তাই গ্রাম বাংলায় যেখানে যাবো গাছপালার মধ্যে আওয়াজটা পাওয়া যায় এবং পাখিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য খুব ভালো কনসেপ্ট এবং বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর থিম। আমার মনে হয় বাচ্চারা খুব বেশি আসবে বাবা মার সাথে, আর বাবা মাদের অনুরোধ করবো বাচ্চাদের নিয়ে আসুন এখানে, আর তারা আনন্দ করবে, কিছুটা সময় কাটাবে, নিশ্চয়ই মায়ের আশীর্বাদ দেবে, মাকে প্রণাম করবে, তার সাথে সাথে পাখিদের যে খুলে দেওয়া উচিত তাদের নিয়ে আজ আওয়াজটা শুনে নিতে পারবে, পাখির আওয়াজ, নানান রকম পাখির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। যারা অর্গানাইজার তাদের তো একটা কথা হচ্ছে, যারা দুর্গাপুজো করে আমার পাশে যারা আছে তপনদা থেকে নিয়ে পুরো টিম, এদের সেক্রেটারি একজন সুরাজ আছে, নানান পুরো টিম, রাজেশ সিংদের পুরো সবাই, একটা টিম প্রায় 8 মাস ধরে কাজ করে একটা পুজো করে। এরা বিজনেস করার পরে 6টা মাস ব্যবসা ফেলে পুজোর জন্য ভেবেছে, তাই পুজোটা হয়েছে। তাই পুরো টিমকে থ্যাংক ইউ বলে, ধন্যবাদ বলে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না এবং বলতে হবে মানে এদের পাশে থাকার জন্য হয়তো আমরা প্রত্যেকে অর্থনৈতিকভাবে সাপোর্ট করতে পারি না, কিন্তু মন থেকে এসে বা মন থেকে এদের পাশে আমরা আছি এবং থাকবো। তো এই ধরনের কাজ এরা আছে বলে ভালো হচ্ছে, এরা না থাকলে ভালো হবে না। টিমকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। নিজেরই করা জিনিস, আর এতে আমি ভালো বলবো কি বলবো, অন্যরা বলছে সেটাই আমার কাছে প্রাপ্য। এইটুকু শুধু বলবো যে মেছুয়া বাজার দুর্গাপুজোর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। আলাদা বৈশিষ্ট্য এই জন্যে যে এই যে জায়গাটায় এত বড় লম্বা জায়গাটায় পুজোটা হচ্ছে, এই পুজোটাতে অন্যদিন পুজোর বাইরে একটা মানুষ পা রাখতে পারে না। ওই জায়গাতে আজকে 200-300 ব্যবসায়ী লোক যারা এখানে দোকান লাগিয়ে বসে থাকে, তারা যে সরে গিয়ে এই জায়গাটা করে দিয়েছে, এটা মেছুয়া বাজারের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। এবং সেকেন্ড হচ্ছে এই পুজোর মধ্যে ভারতবর্ষের মিনি ভারতবর্ষের সবকিছু পাওয়া যাবে। এখানে সব মজহব, সব জাতের লোকেরা একসঙ্গে মিলে পুজোটা করে। যেমন রাজেশ সিং আছে সেক্রেটারি, যেমন আমি আছি প্রেসিডেন্ট, যেমন ভাইস প্রেসিডেন্ট খুরশিদ আলম পান্ডে ভাইও আছে। তো বহুত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরও এই পুজোতে যোগদান থাকে এবং আমরা সকলে মিলে এই পুজোটা করি। আমরা সকলে মিলে, পেছনে আছে আমাদের লাকি সিং আছে, হ্যাঁ। তো এই সব জাতের সব মানুষকে নিয়ে এই পুজো, এবং এই পুজোটা এটাই বৈশিষ্ট্য যা আমরা জাত পাত ধর্ম নির্বিশেষে সকলে মিলে আমরা এই পুজোটা করি। मछुआ बाजार दुर्गा पूजा समिति स्पेशली बच्चों लोग का ही थीम करता है। आप देख लीजिए वेलकम टू ढोलकपुर, अवतार देख लीजिए, टेडी बियर म्यूजियम देख लीजिए, कैंडी लैंड देख लीजिए, तो बच्चों पर ही आधारित करके हम लोग का पूरा थीम बच्चों को ही आकर्षित करने के लिए मछुआ बाजार दुर्गा पूजा का नाम है। इस बार हम लोग एक जो थीम रखे हैं, पंछी के ऊपर रखे कि पंछी को हम लोग जो कैद करके रखते हैं, वो उनके साथ जो हम लोग जुल्म कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग देखिए पूरे
मंडप में एक आंख रखते हैं। उससे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सबको एक आंख से देखना चाहिए और पंछी को आज़ाद रखना चाहिए, उसको कैद करके नहीं रखना चाहिए। उसका भी एक उड़ान है, इसीलिए इस थीम का नाम है उड़ान। आप आराम से उड़ते रहिए और दुनिया को अपना आज़ादी दिखाते रहिए। राजेश जी, यहाँ के ताजिरों के बारे में थोड़ा बताएंगे कि उनके सहयोग से काफी उन लोग अपने बिजनेस को लॉस करके यहाँ पे पंडाल को सहयोग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक शब्द। देखिए, उनका मछुआ बाजार दुर्गा पूजा समिति हमेशा से उनका शुक्रिया अदा करता है कि पिछले 73 साल का ये पूजा है और हमेशा वो लोग हमेशा साथ में खड़े रहते हैं और सुख दुख में हम लोग उनके साथ में रहते हैं। 2 महीना पहले वो अपने बिजनेस को बंद करके पूरा टाइम देते हैं और साथ ही साथ ये मछुआ बाजार दुर्गा पूजा समिति एक ऐसा समिति है जो वो हॉकर भाई पूरे साल 1 रुपया 2 रुपया करके सब चंदा भी देते हैं। वो लोग सिर्फ दुकान ही नहीं हटाते हैं, हम लोग 1-2 रुपया करके बिकती उन लोगों से पिछले 73 साल से उन लोग का सहयोग हम लोग के साथ में है। राजेश भाई, यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर आज से 4 महीने पहले बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। उस आपदा से कैसे आप लोग बाहर निकल पाए और निकल पाए? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना था, लेकिन हम लोग मछुआ बाजार दुर्गा पूजा समिति और यहाँ के जितने लोग सब बढ़ चढ़ कर उसमें उस विपदा के समय में उनके साथ खड़े थे और कईयों लोग को हम लोग बचा के ऊपर से नीचे उतारे हैं और उनका करके शंकर भाई हैं जो खुद रात दिन यहाँ पर थे, समस्त लोग यहाँ पर रह के उनका सही से उनका रेस्क्यू करके हम लोग उनको बचाने की कोशिश की और जो जिनका प्राण चले गया है उनके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। कल जो शहर में जो हालत था, पूरा कलकत्ता डूब चुका था, ऐसे में उम्मीद था कि आज आप लोग का टाइम से हो जाएगा। देखिए, ये ममता बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, सबसे दुखद घटना जो हम लोग CSC के लापरवाही से जो लोग मरे हैं, लेकिन दीदी बोला उनको कंपनसेशन देने, उनको नौकरी देने के लिए बोली है और साथ में बोला वो दीदी हमेशा उनके साथ खड़ा है। और देख लीजिए, वही पश्चिम बंगाल जो 24 घंटे पहले कुछ था, आज देखिए पानी का एक कतरा का नामो निशान नहीं है, उसका नाम ही ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी बार-बार बोल रहे कि बॉबी हकीम को अरेस्ट करना चाहिए, कल वो फेलियर थे। देखिए, आगल पागल का बात हम लोग करेंगे। मैं बहुत दिल की गहराइयों से मछुआ बाजार सार्वजनिक दुर्गा उत्सव के सदर मोहतरम जनाब तपन राय मिंटू दा का और उनकी पूरी टीम जो है, खास तौर पर शंकर श्रीवास्तव जनरल सेक्रेटरी, राजेश सिंह जो के जनरल सेक्रेटरी हैं और शंकर श्रीवास्तव जो के कन्वेनर हैं और बबलू दा है। आप देखिए, आरजू भाई असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा और खुर्शीद आलम पांडे साहब वाइस प्रेसिडेंट है और जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, मुन्ना है, ये लोग हैं। और बरसों बरस से जो है, जब से मैं एक बात कह सकता हूं कि शंकर श्रीवास्तव, राजेश सिंह, जब से ये मछुआ बाजार पूजा समिति में, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये बात, जब से ये दोनों लोग इस पूजा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे भूला नहीं है। हर साल मैं यहाँ आता हूँ, 2-1 साल नहीं आ पाया हूँ किसी वजह कर, लेकिन मैं हर साल आता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इस बार का जो थीम है, इसके लिए तो हम उनको मैंने दिल की गहराई से सिर्फ मुबारकबाद नहीं देंगे बल्कि सैल्यूट करेंगे कि जिस तरह से आज हमारे माहौल का, माहौलियात का, जो जिस तरह से आज हमारा जो माहौल है, क्योंकि एक इंसान बगैर माहौलियात के सेहतमंद नहीं रह सकता है। तंदुरुस्ती की सबसे बड़ी जमानत है माहौलियात, यानी आपको वो वातावरण मिले। अगर आपके पास वो वातावरण नहीं है, यानी कि जंगल, पेड़ पौधे और साथ ही साथ जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इससे एक माहौलियात बनता है, माहौल बनता है, पर्यावरण जिसको कहते हैं। और आज एक बेहतरीन मैसेज उन्होंने दिया और क्या शानदार, सिर्फ मैसेज ही नहीं दिया बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी जंगल में हैं और चारों तरफ से जो है पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ पे जब मंडप के बाहर थे एक अलग एटमॉस्फेयर था और जब मंडप में यहाँ पर आए हैं, आप यकीन मानिए, मैं टू बी ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि दिमागी इतना सुकून मिल रहा है। ऐसे भी जब सुबह के वक्त में किसी कोयल, किसी बुलबुल की जब आवाजें कान को आती है तो पूरा शरीर में एक किस्म का इस्तिराबियत पैदा हो जाता है
उस वैसे ही आज मछुआ बाजार पूजा मंडप में यहाँ आकर, हालांकि यहाँ पर इन्होंने आवाज दिया है कि परिंदों को आजाद करो, किसी भी परिंदों को पिंजरे में मत रखो। तो मैंने यहाँ देखा चाहता था कि यहाँ परिंदा ही लोग रखा, लेकिन सब आर्टिफिशियल है और खुला रखा है। यहाँ कोई भी जीवित नहीं है, जितने भी पक्षी रखे गए। लेकिन ये जो आवाजें आ रही हैं, इससे लोग डाउटफुल करेंगे कि ये जीवित परिंदे हैं। आवाज देखिए, नेचुरल आवाज है। देखिए, तो ये आवाज, ये वातावरण और ये 5-6 दिन 7 दिन इस माहौल में, और इस मैसेज जो दिया गया है बहुत बढ़िया मैसेज है। मैंने बाहर में भी एक बताया कि ये जो मैसेज है सही मानों में जानवरों को, परिंदों को जो है आजाद रखना चाहिए, कैद करना नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं दिल की गहराई से मछुआ बाजार के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान, तमाम रजाकारान, तमाम वॉलंटियर्स सबों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। और बहुत मुझे तो उम्मीद है, आज ही मैं ये बात कह देता हूं, मेरे ख्याल से बहुत सारा रिकॉर्ड्स इस बार टूटने वाला है, आप देखेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मैसेज सिर्फ मैसेज नहीं है, ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ये বাঙালির বাংলার সবথেকে বড় উৎসব শারদ উৎসব, দুর্গোৎসব, এবং আমরা দেবীপক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে মায়ের আগমনী বার্তার সাথে সাথে আমাদের বাংলায় সব ধর্মের মানুষ দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে। এই মেছুয়া বাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এখানে একটা অত্যন্ত ব্যস্ততম অঞ্চল। এখানে আপনারা সবাই জানেন যে ফলের হোলসেলিং মার্কেট থেকে শুরু করে একটা ব্যবসায়ীদের অঞ্চল এটা, বড় বাজারের, বৃহত্তর বড় বাজারের। এবং তার মধ্যেও এই অঞ্চলে যে এত ভালো করে দুর্গাপুজোর আয়োজন প্রতি বছর এই কমিটি করে, আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সাথে সাথে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা এবং ব্যবসায়ীরা তারা সহায়তা করে, তাদের দোকানপাট এদিক ওদিক করে সহায়তা করে বলেই এই পুজো এই জায়গাতে এইভাবে এত সুন্দর উপস্থাপনা করতে পারে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং চাইবো যে আগামী দিনে আর 2 দিন পরেই মায়ের বোধন, তারপরে 4 দিনের দুর্গাপুজো, সেই দুর্গাপুজোর আনন্দে সবাই মিলে যেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই কলকাতার বুকে আসবে সেটা তো ঠিক, কিন্তু এই মানুষজন এসে যেন এই মেছুয়া বাজারের পুজোও তারা উপভোগ করে সেই কামনা করবে। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, बंगाल और बंगालियों का सबसे बड़ा उत्सव, और जैसा कि हमारी दीदी ममता बनर्जी कहती है कि पर्व अपना अपना, उत्सव सबका, तो ये हम सबका उत्सव है, इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आप यदि 10 दिन पहले मछुआ आए होते तो आपको मछुआ दूसरा दिखता, लेकिन आज आप मछुआ देखिए किस तरह से आबो हवा का वातावरण और एक कितना सुंदर मैसेज देने की चेष्टा यहाँ के उद्योक्ता ने की है, राजेश ने और शंकर ने, कि मनुष्य जैसे हम लोग तो जो कलकत्ता शहर का जो जीवन है, शहर का जीवन देखिएगा, वैसे जो है दिन भर घोड़ा की तरह या बैल की तरह लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि मनुष्य तो कैदी का जीवन जी रहा है, लेकिन चिड़िया को भी जो हम लोग कैद कर दे रहे हैं, उनको मुक्त रखने की जो यहाँ से संदेश दी जा रही है कि चिड़िया को कैद ना करे, उनको खुले आबो हवा में छोड़े और पर्यावरण का आनंद लेने दे। क्योंकि यदि पंछी कैद हो जाता है तो उसका जीवन सामान्य नहीं रहता। यदि कैदी को जेल में रख दिया जाए, एक आदमी को जेल में रख दिया जाए, उसी तरीके से पक्षी को जेल में रख दिया जाना होता है। तो जो यहाँ से उद्योक्ता जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि चिड़िया को हमारे इस पर्यावरण में छोड़ देना चाहिए, कैद नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही सुंदर मैसेज दे रहे हैं। ये दोनों ही भगवान है जो अदृश्य है, जिसको हम लोग मानने वाले हैं और हम लोग दिल से मानते हैं। हम लोग समझ लीजिए, मैं मस्जिद के नीचे मेरा दुकान है, इमाम साहब से डेली हमारा दुआ सलाम होता है, और हमारे जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसके नीचे शिव जी का मंदिर है, पंडित से भी हमारा डेली नमस्कार और प्रणाम होता है। हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है, लेकिन देखिए सियासत जो है, सियासत में कई लोग हमेशा अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह रेड रोड में जाकर नमाज अदा करने वाले लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश में एक संकेत देती है कि देखिए, मैं हिंदू हूँ लेकिन मुसलमानों के बीच खड़ी होकर उन लोगों के अजान में उन लोगों को सहयोग कर रही हूँ। और उसी तरह ये जो दुर्गा उत्सव है, जिसको शारदीय उत्सव बोला जाता है, समझ लीजिए ये शारदीय उत्सव इसलिए बोला जाता है, काली पूजा को काली पूजा बोला जाता है, सरस्वती पूजा को सरस्वती पूजा बोला जाता है, ईद को ईद बोला जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा को शारदीय उत्सव क्यों बोला जाता है? ये उत्सव है,
और उसी उत्सव को दीदी रेड रोड में उसी जगह जहां नमाज अदा होता है उसी जगह पर इस मूर्तियों का एक बहुत बड़ा मेला, जो आज आप जानते हैं यूनेस्को ने हमारे पश्चिम बंगाल के इस दुर्गा पूजा को अवार्ड से नवाजा है, तो कुछ सोच समझ कर नवाजा। हमारी एक संकेत है कि देखिए बंगाल से जो पहले बोला जाता था कि बंगाल जो आज करेगा पूरा भारत कल सोचेगा, तो आज भी हमारे लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से जो संदेश दे रही है, पूरे भारतवर्ष को एकजुट बनाइए, एक छत के नीचे रहिए और ये जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव है इसको आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए। पांडे भाई, हमारे खुर्शीद आलम पांडे भाई, यहाँ नूर कलीम शाहिद भाई बैठे हुए हैं, आरजू अभी है, गुल्लू आया, आरजू भाई है, हमारे मंजर भाई है, हमारे तपंदा, हमारे माने विशिष्ट बंगाली, जो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोग हिंदी भाषा भाषी, उर्दू भाषा भाषी जगह पर हमारे प्रेसिडेंट जो वार्ड के भी प्रेसिडेंट है और हमारे पूजा समिति के भी प्रेसिडेंट है, हम लोगों ने एक बंगाली नायाब हीरा पाया है। और मैं ये कहते हुए बहुत फक्र महसूस करता हूँ कि देखिए इस पूजा में हमारे जितने भी होकर भाई है, यहाँ पे कम से कम 30 से 40% होकर भाई हमारे मुसलमान हैं, लेकिन सब हमारे पूजा कमेटी के मेंबर है। हमारे मंडप के ठीक पीछे में पांडे भाई रहते हैं, हमारे गोपी भाई रहते हैं, हमारे नौसाद भाई रहते हैं, लेकिन उन लोगों का पूजा समिति में सिर्फ तन से नहीं, मन से नहीं, धन से भी सहयोग रहता है। और हमेशा उन लोग तपंदा से हम लोगों से कहते हैं कि और अच्छा करो और अच्छा करो, और वही साहस से हम लोग आज बड़ा बाजार के अंदर में जितने भी साड़ी व्यापारी है उनका भी सहयोग, आज जितने भी बड़ा बाजार में हमारे व्यापारी वर्ग है उनका भी सहयोग मछुआ बाजार में रहता है। और मछुआ बाजार हमेशा बच्चों के थीम के लिए जाना जाता है। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये 73 साल ये पूजा मछुआ बाजार का हो गया। मैं पूजा कमेटी का एक मुसलमान होके ये वाइस प्रेसिडेंट पूजा कमेटी का, और हम लोग ये देखिए मिलजुल के ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। और ये राजेश भाई है, शंकर भाई, सब मिलके मिंटू दा हमारे मिलजुल के करते हैं। और ये थीम जो बना है हमारे, हर साल नया नया थीम होता है ये पूजा का, और ये साल भी अलग हट के बना है। और हम लोग देखिए कोई भेदभाव नहीं रहता, और ये पूजा मिलजुल के हम लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमारा दीदी भी बोले हुए हैं कि मिलजुल के चलो, सब अपन मिलजुल के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई सब भी हो, कोई नहीं, चलना साथ और सब कुछ ठीक है।